गुड इवनिंग बेटा। Good evening, dear students. Am I audible to everyone? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay, chalo. I have sent you some 4 questions from the relative velocity 1D dimensions. Have you gone through it, beta, everyone? Yes, sir. करे कुछ आए करने के लिए आ रहे 1D डायमेंशन के 2 क्वेश्चंस भेजा था मैं, देखो जल्दी से, या आज टाइम ले लेके कर लोगे Yes, आप? sir. अगर नहीं आ रहे तो मेरे को पूछो, फिर आई हेल्प यू आउट। Okay, sir. हाँ, आज एक बार ट्राई करो आप लोग। 4-5 क्वेश्चंस मैंने भेजा था आफ्टरनून में, शायद आप लोग के क्लासेस वगैरह थे, शायद नहीं बोले तो हम लोग के आपके पास अभी राइट नाउ यू हैव क्वेश्चंस विद यू, यू प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन डू इट आउट। हम लोग कर लेंगे अभी, नहीं तो विल ट्राई टू डू इट इन द नेक्स्ट सेशन, जैसे आप लोग की मर्जी। आज ट्राई करते एक बार। 4 क्वेश्चन ही दिया मैंने आप लोग को, 1 2 3 4 क्वेश्चंस भेजा था। एक बार ट्राई करो, अगर आया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है? Okay, sir. सो व्हाट इज डेट टुडे? 02 ना 11/20/20। So let us try to talk about in today's session of a class. Recording option जा रहा है बेटा? या रिकॉर्ड हो रहा है। चलो स्क्रीन शेयर हो रहा ना सभी को? Yes, sir. चलो keep the next heading बेटा। relative velocity in 2 dimension 2D, because we know the vectors, that is the reason we are trying to do the relative velocity in terms of your vector condition beta. Okay, so देखो say right now the given condition, we are having a body moving in your plane like this. This is your x coordinate, this is your y coordinate. Okay, so we are having 2 bodies. मान के चलो यहाँ पर एक body है right now, this one is your A and this one is your B. This B is moving in this direction and A is moving in this direction. Velocity of A is 3 meter per second and velocity of B is equals to 4 meter per second. This is x and this is y. Now I need to calculate velocity of B with respect to your A is equals to your how much? Velocity of B with respect to your A is equals to your how much? Okay, now see how do we do it out. देखो बेटा अच्छी तरह से देखो। Now this body is moving 2 dimension बेटा, क्योंकि we are having x coordinate and y coordinate, so obviously it is a 2 dimension. Now what we need the velocity of B with respect to A. Velocity of the B with respect to your A. So how do you write it? Can anyone tell me? Velocity of B with respect to your A बोले तो कैसे लिखेंगे? Velocity of B with respect to your A means velocity of your B minus velocity of your A. Is it clear for everyone? yes, sir. Isn't it? B is moving in which direction beta? Upward direction. So this will be equal to how much for me? 4 into your J cap. Isn't it? And A is moving in which direction right now beta? In this direction. So that is positive only. So that will be equal to how much for me? Your minus of your 3 into your I cap. I cap. Clear hai? Yani, what you do is right now, for this given condition. So when you are doing right now, this is the velocity of the B with respect to your A. Now can anyone draw the diagram for this one beta? Vector diagram कैसे draw करेंगे? देखो ये मेरा coordinate है, अच्छी तरह से देखो बेटा। If you are not getting it, please let me know, I'll help you out.
ये मेरा x एंड y कोऑर्डिनेट है, ये मेरा y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है. Now the particle is been moving in this direction right now. One is positive j cap, यानी ये हो गया velocity of your b. Velocity of your b ये कितना है 4 into your j cap. Velocity of a is how much बेटा -3. That means this will come in this direction. Vectors में minus of 3 into your I cap. आया सभी को वेक्टर ड्रॉ करना? Yes, sir. Now इसका रिजल्टेंट कैसा होगा कोई बता सकता है क्या? The resultant of this one is something like this. So this is the resultant of this one. So this will be the velocity of b with respect to your a. If I close this one, this will form for me a triangle law, parallelogram law vector का condition बन जाएगा. Clear है? If I need to calculate the magnitude, velocity of a with respect, velocity of your b with respect to your a का magnitude, velocity of b with respect to a का magnitude, that will be equal to your under root of your, this will become for me 4 square plus this one is of your minus of your 3 whole square. क्योंकि इसकी value minus है, so this will become for me how much? 4 square is your 16 plus 3 square is nothing but of your 9. So this will become for me root 25. Root 25, that will be equal to 5 meter per second. Is that clear? This is a vector method. Is it clear? Yes, sir. Go through it once. If you are having any doubt, you please let me know. See, A is moving in the positive x-axis, B is moving in the y-axis. We need to calculate velocity of B with respect to your A. In the same way, you can practice for this one. Velocity of your A with respect to B. And velocity of A minus velocity of B. Clear, eh? Yes, sir. Chalo, we'll try to go for one more method. Alternate method. मैं रेन एंड अम्ब्रेला के भी प्रॉब्लम्स यही मेथड से करूंगा, तो आप लोग यहीं पर इसको कंसंट्रेशन करके समझने की कोशिश करिए. ओके, सी हियर, से फॉर एग्जांपल दिस इज योर ए and this one is your B. Okay, now if I'm talking about let velocity of your A with respect to B, अगर मुझे बात करना है velocity of A with respect to your B partition, यानी we are talking about what? Velocity of A with respect to whom बेटा? Velocity of A with respect to whom? B ना? तो B क्या है यहाँ पर? B is your reference. ठीक है ना? अब जैसा आपको नीट रिजल्ट निकालना है, मान के चलो आपको एक 680 मार्क्स होना है या 600 क्रॉस होना है या 650 क्रॉस होना है, तो ये क्या है आपको, अगर आपके मार्क्स अभी मान के चलो 400 है, तो ये आपके मार्क्स 400 है, आपका टारगेट क्या है 680 है, तो आपका रेफरेंस क्या हो गया बेटा 680 रेफरेंस है ना. दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट योर मार्क्स ऑफ योर 400 विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट 680 मुझे आना है, तो आपका रेफरेंस क्या है 680 रेफरेंस है. ठीक है ना? इस रेफरेंस को आप अपने दिमाग में रखते हो बेसिकली, अरे मुझे 680 क्रॉस करना है, 700 क्रॉस करना है या 600 क्रॉस करना है या 500 क्रॉस करना है या 550 क्रॉस करना है, जो भी है एक रेफरेंस आपके दिमाग में रहता है ना, ये आपका रेफरेंस है बेसिकली. इज इट क्लियर है सभी को? तो Yes, sir. पर रेफरेंस है यानी हम लोग कंपेयर करते हैं ना क्लास के, मान के चलो अगर क्लास में 1 2 3 वैसे 100 स्टूडेंट्स है, अगर आपके क्लास में सेकंड रैंक है तो आप क्या बोलोगे, अरे यू आर सेकंड रैंक विद रिस्पेक्ट टू व्हाट फर्स्ट रैंक. अगर आपका रैंक थर्ड है तो आप थर्ड किसके रेफरेंस में, ये फर्स्ट में है. अगर ये रेफरेंस ही नहीं होता, फर्स्ट फेलो नहीं होता, सेकंड फेलो नहीं होता, तो आप ही फर्स्ट होते ना. आपको थर्ड रैंक क्यों मिला? क्योंकि आपके सामने 2 बच्चे हैं ऑलरेडी, तो आपका रेफरेंस क्या है, इसके रेफरेंस में आप सेकंड है, थर्ड है, सेकंड से आप कितने हैं, सेकंड है. ऐसा कंडीशन हो रहा है बेसिकली यहाँ पर रेफरेंस. ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी इज नथिंग बट व्हाट बेटा फॉर मी, रेफरेंस. बी इज योर रेफरेंस बोल सकते हैं, या इसको हम लोग ऑब्जर्वर बोल सकते हैं. ये ऑब्जर्वर है, यानी अगर आपने 680 मार्क्स अपने टारगेट डाल लिया, तो मान के चलो नीट 2021 आपका जो स्कोर है 400, ये आपका इंतजार कर रहा है. यहाँ पर ये 680 आपका इंतजार कर रहा है, ये यहाँ पर बैठा हुआ है फिक्सली. अभी देख रहा है कि ये आप यहाँ पर कैसा हो गया, 400 से जंप करके 450 को जाओगे, 450 को जंप करके 500 को जाओगे, 500 को जंप करके 550 को जाओगे, 550 को जंप करके 600 जाओगे, 600 को जंप करके 680 जाओगे. तो नीट 2021 किसको देख रहा है, आपको देख रहा है. आप नीट 2020 क्या हो रहा है बेसिकली, ये आपका रेफरेंस है, isn't it? ये वाला कभी भी चेंज नहीं होता.
680 अगर आपका टारगेट है, मतलब ये टारगेट है, तो आप क्या कर रहे हो, आप इसके तरफ भाग रहे हो, ये आपके तरफ नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो वो अपना रेफरेंस हो गया। सो वेलोसिटी ऑफ योर ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी क्या है यहाँ पर मेरे पास, रेफरेंस है, और रेफरेंस को हम लोग और एक नाम क्या दे रहे हैं, ऑब्जर्वर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से देख लो। बी को जो है रेफरेंस जो भी है, बी को हम लोग अपने दिमाग में बिठा लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, मतलब उसको हम लोग स्टॉप कर लेंगे। एक टारगेट बना दिया, आपका टारगेट आप सिर्फ 680 है मान के चलो, तो बी को हम लोग ने स्टॉप करो। सो बी को स्टॉप करो and give its equal, give its velocity मान के चलो, give its velocity to your A and in opposite direction, and in opposite direction। तो क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग किसको स्टॉप कर रहे हैं, रेफरेंस को स्टॉप कर रहे हैं। रेफरेंस को बोल रहे हैं आप स्टॉप हो जाओ, एंड वी आर गिविंग, इसको जो भी वेलोसिटी है उसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी हम लोग ए को दे रहे हैं, बट इन विच डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन हम लोग इसको दे रहे हैं बेसिकली। क्लियर है? ये मेथड क्लियर है सभी को? करना कुछ नहीं है, स्टॉप करना है, उसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी को ए को देना है, उसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी वी आर गिविंग इट टू योर ए पार्ट ऑफ रिलेशन। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. दिस मेथड क्लियर? तो यही मेथड से अब ये प्रॉब्लम फिर से करते हैं। यही प्रॉब्लम देखो, ए इज मूविंग विद 3 मीटर पर सेकेंड, बी इज मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड। वी नीड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू योर ए। आई एम ट्राइंग टू राइट इट विद व्हाइट पेन। सेकंड सॉल्यूशन बोल के लिख रहा हूं यहाँ पर, देखो ये मेरा सेकंड सॉल्यूशन है इसी का। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब क्या, मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ योर बी में कौन रेफरेंस है, बता सकता है कोई? A. रेफरेंस बेटा, ये रेफरेंस। स्टॉप यूवर ये, स्टॉप यूवर ये, और ये की इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी बी को देना, ठीक है ना? Yes, sir. तो देखो आप किसका साथ, ये डायग्राम में देखो, अब ये रेफरेंस है, ये को स्टॉप करो, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, एक्स एक्सिस में जा रहा था। अब इसको पकड़ो, बोलो कि बेटा अब एक्स एक्सिस में जाना नहीं है, अब अपनी डायरेक्शन बदलो। बदलो मतलब इसको क्या करना है, -3 देना है। -3. किसको देना है लगा के, देखो स्टॉप ये एंड गिव इस इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू योर B. में जा रहा था, देखो इस तरह से मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो बी तो ऊपर जा रहा था, तो बी तो बोल रहा था कि मैं तो ऊपर जा रहा हूँ बेटा, यहाँ पर है ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी, और ये बोल रहा है तो मैं तो ऊपर जा रहा हूँ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बी को स्टॉप कर रहे हैं, और जो टेल है ना, टेल ऑफ बी को हम लोग ए को अटैच कर दे रहे हैं। अब बोले ए को स्टॉप हो जाओ और उसकी वेलोसिटी दे दिया, दिस वन इज नथिंग बट 3i। आ गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट है, बिकॉज यू सी टू वेक्टर्स आर एट द टेल एंड टेल एडिंग, द रिजल्टेंट विल बी दिस वन। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू योर ए। आया सभी को? Yes, sir. Isn't it? समझ में आया? ये प्रैक्टिस करे तो आराम से हो जाएगा बेटा, थोड़े क्वेश्चंस अच्छे वाले प्रैक्टिस करो, आराम से परफेक्शन आ जाता है इसमें। तो अब ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो डायरेक्टली आप आंसर यही लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू योर ए, मतलब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, 4 into योर जे कैप है, और ये हो गया मेरे पास कितना, माइनस ऑफ योर 3 into योर जे कैप। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू योर ए, तो बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ योर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो ऑब्वियसली ये भी हो गया मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? Is it clear for everyone? Yes, sir. नहीं आया? नहीं आया? आ गया सर। Velocity of A with respect to B है, तो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, B को स्टॉप कर रहे हैं, and we are giving its equal and opposite velocity to your A, and in which direction? Opposite direction। यही क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं, find velocity of your A with respect to B, तो कितना होगा, कोई बता सकता है जल्दी से? अब यहां पर रेफरेंस कौन है बोलो? B रेफरेंस है, so stop your B, stop B and give is equal and opposite velocity to what? ये अब देखो ये इस तरह से जा रहा था, isn't it? तो ये तो बेचारा कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, देखो भूल गया मैं, ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा था। मैं बोला ठीक है, इसको तो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, और बी को सी डायरेक्शन में जा रहा था, ऊपर के डायरेक्शन में। अब हम लोग रेफरेंस किसको मान के चलें, बी को, तो बी को स्टॉप करो, इसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी ये को दे दो, तो ये था ना,
तो इसकी इक्वल ऑपोजिट वेलोसिटी नीचे आ गई, तो ये हो गया b। तो ये कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड आ गया, और इसका रिजल्टेंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गया रिजल्टेंट v। सो वेलोसिटी ऑफ योर a विद रिस्पेक्ट टू b मतलब क्या हो गया बेटा 3 इंटू आई कैप माइनस 4 इंटू जे कैप। आ गया, आया सभी को? यस सर। नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया? आ गया सर, आ गया। ठीक है। और एक क्वेश्चन बताता हूँ, मैं ऑलरेडी सीनियर्स को बोल चुका हूँ ये टॉपिक आप लोग के लिए तो आसान होना चाहिए, मैं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, नए कुछ भी नहीं करा रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, पता नहीं आप लोग को आइडिया है या नहीं है। चलो मैं और एक डायग्राम दे रहा हूँ, देखो मान के चलो, ये डायग्राम दो मेथड से भी करना है, एक तो पहले वेक्टर मेथड से करना है, मैंने दो मेथड्स आप लोग को समझाया बेटा, ये तो वेक्टर मेथड है, फर्स्ट वन इज नथिंग बट योर वेक्टर मेथड है, आपका जो परफेक्शन होता है वो कर लो, या दो भी परफेक्शन है तो दो मेथड से भी करते रहो, आपको क्लैरिटी आ जाती। और भयानक प्रॉब्लम्स इसमें रहेंगे, लेकिन वो जेई मेंस और एडवांस के लिए रहेंगे, वो प्रॉब्लम्स को हम लोग को टच करना नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस दिमाग में रख के छोटे छोटे क्वेश्चंस करना है, ट्रिकी क्वेश्चंस करना है बस, जो हम लोग को आंसर्स 60 सेकंड्स के अंदर आ जाए। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन ले लिया 5 मिनट लग गए 10 मिनट लग गए एक ही क्वेश्चन के पीछे बैठे हो, नो, ऐसे वाले क्वेश्चंस कभी आपको नीट में नहीं आते, तो आप अपना टाइम वेस्ट करना नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी बहुत टफ माना जाता है, टफ इसलिए माना जाता है कि आप लोग अननेसेसरी क्वेश्चंस करते हो, जैसे जेई मेंस के क्वेश्चन से, एडवांस के क्वेश्चन से, वो करने में आप लोग लग जाते हो, इसलिए टाइम वेस्ट हो जाता है ये वो रेफरेंस में। तो आपका नॉलेज जितना चाहिए नीट के लिए, उतना जितना भी नॉलेज चाहिए मैं आप लोग को दे रहा हूँ, तो वही बाउंड्री में रह के आप परफेक्शन बनाइए और अच्छे वाले क्वेश्चंस करिए, एंड सी दैट एवरी क्वेश्चंस आर इन 2 to 3 लाइंस। आप लास्ट 2-3 इयर्स के नीट के पेपर देखो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहां पर आपको लेंथी कैलकुलेशन लग रहा हो या 4-5 स्टेप से ज्यादा कैलकुलेशंस में आपको आंसर आ रहा है, isn't it? So don't go for a very lengthy calculations or very big questions right now. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो आप लोग, दिस इज अ डायग्राम, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट ये है, क्वेश्चन समझो अच्छी तरह से, ये इज मूविंग विद दिस वन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, दिस वन इज 37। जहां पर भी कोई वेक्टर आपको एंगल बनाते दिखाई दिया तो पहले क्या करना है, दबक से इसका कंपोनेंट्स बना लेना, इसका x कंपोनेंट इसका y कंपोनेंट्स बना लेना। कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम, जैसे ही आपको दिखा अरे ये कुछ एंगल बना रहा है, तो पहले उसको तोड़ देना है, उसका x एक्सिस का एक लिखना है, उसका y एक्सिस का कंपोनेंट लिख देना। बात क्लियर है? तो ये हो गया b, और b जा रहा है इस डायरेक्शन, ओके, और इसकी भी एंगल है मान के चलो 37। तो अरे ये तो बढ़िया है, बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि सब कुछ आपने को रिजॉल्व करना है, खाली हम लोग तो वेक्टर्स आता है अच्छी तरह से, तो खाली हम लोग उसको करना है क्या, रिजॉल्व करना है, पूरे x एक्सिस लेना है, पूरे y एक्सिस लिखना और सिंपली आंसर निकाल देना। तब करना क्या है, देखो यहाँ पर फाइंड velocity of your A with respect to B is equals to how much, ये मेरा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रेन एंड अम्ब्रेला का प्रॉब्लम आप लोग एक एक लाइन में बना लोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स में बेसिकली, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट, डायग्राम क्लियर है सभी को, मेक योर डायग्राम क्लियर फर्स्ट। ये x एक्सिस है, ये माइनस ऑफ x एक्सिस है, और ये मेरा नेगेटिव ऑफ योर y एक्सिस है। वी नीड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। फर्स्ट आई एम डूइंग बाय द वेक्टर मेथड, उसके बाद हमारा शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे, पहले 2-3 क्वेश्चन दो मेथड से भी करवा देता हूं, जो भी मेथड आपको समझ में आ रहा है उसके हिसाब से आप लोग परफेक्शन बना लेते चले जाइए, ठीक है ना। अब करना क्या है, देखो पहले क्या करोगे, पहले मैंने क्या बोला, जैसे ही आपको रिजॉल्विंग एंगल दिख रहा है तो पहले क्या करना है, चार मीनार पे जाके बैठना है, कंपोनेंट्स निकाल लेना। हाँ पहले क्या करना है, कंपोनेंट्स निकाल लेना। तो मैं यहाँ पर इसका कंपोनेंट देखो जल्दी से, ये हो गया, ये विथ इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, तो ये एंगल है इसका 37। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर आएगा कितना बेटा, 5 into cos 37 is clear for everyone, and this one is your 5 into sin 37। अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो प्लीज टेल मी, आई विल हेल्प यू आउट, नो प्रॉब्लम। दैट इज इक्वल्स टू 5 cos 37 is how much बेटा, 4/5, ये 5 चले गया, so this will be equal to 4 meter per second। नेक्स्ट टाइम तक जब मैं आ जाऊंगा फोकस एकेडमी, लॉन्ग टर्म के बच्चे जो भी अभी कैंपस में बैठ के देख रहे हो, आप लोग मैजिक ट्रायंगल का एक पेपर बना के अपने क्लासरूम में या कोई भी एक वॉल को स्टिक कर दोगे अच्छी तरह से, और ट्रिग्नोमेट्री के भी 1 से साइन से लेके 60, 30, 40, 50, सॉरी 45, 60, 90, 120, 180 और 360 के एंगल साइन कॉस और टैन के एक चार्ट बना देके आप लोग वॉल को चिपका दोगे ना।
मैजिक ट्रायंगल एक बना दे के उसके पूरे एंगल साइन कॉस टैन के पूरे एंगल्स आप लोग एक चार्ट बना दे के अच्छे बड़े से चार्ट में आप कोई भी एक वॉल को चिपका दीजिए क्लास में जहां पर भी बैठ रहे हो आप लोग, ठीक है? करोगे? नहीं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। सर ये डायग्राम समझ में नहीं आया। ये देखो बेटा यहाँ पर ये देखो ना 5 नहीं ये वेक्टर मेथड के नीचे है। ये वाला ना, हाँ ये इसी हाँ। को करो। ये वाला जो है ना इसको मैंने यहाँ रिजॉल्व किया ऐसा, रिजॉल्व किया ऐसा। वेक्टर को रिजॉल्व करते ना जहां पर थीटा है वहां पर कॉस आएगा ना, अच्छा ठीक। है कि ना? ये वर्टिकल साइन रिजॉल्विंग ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पर जहां पर भी थीटा है वहां पर कॉस आ जाएगा। ब्लाइंड भी याद रख लो, मैं वेक्टर्स में भी पढ़ा चुका हूं, ऑलरेडी टोल्ड यू इन वेक्टर्स आल्सो, वेयरएवर इज थीटा दैट साइड विल बिकम फॉर मी कॉस, अदर साइड विल बिकम फॉर मी साइन। उसी तरह से राइट नाउ फॉर दिस वन यू सी, ये वाला क्या है यहाँ पर देखो, ये वाला बी है, तो यहाँ मैं थोड़ा नजदीक लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये वाला इसको मैं नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो दिस वन इज राइट नाउ हियर। तो ये इसकी वेलोसिटी नहीं दिया ना मैं यहाँ पर, इसका वेलोसिटी प्रॉब्लम में दे रखा है। दिस वन इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसकी भी हो गई यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड। और इसको रिजॉल्व करो बेटा जल्दी से। एक कंपोनेंट वर्टिकली नीचे जाएगा और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही ना, इसको ऐसे ही रिजॉल्व करोगे ना, यहाँ पर एक रिजॉल्व करोगे, यहाँ पर एक रिजॉल्व करोगे। एंड हियर इट इज राइट नाउ हाउ मच 37। ये sin 37 कितना है बेटा, कोई बता सकता है क्या? sin 37 इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 3/5। ये 3 ये 5 चले गया तो ये वैल्यू कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? चलो अब ये हो गया, तो इसका कंपोनेंट्स बताओ यहाँ पर कितना आएगा, कोई बता सकता है क्या? 10 इंटू cos 37, टेन इंटू कॉस 37। और ये वाला कितना आ जाएगा 10 into 10 sin इंटू 37, साइन 37। आई होप नाउ यू कैन टेल मी दिस वैल्यू कितना हो जाएगा। 10 इंटू साइन 37 कितना है 3/5, तो ये कितना आया 5 1 जा meter. 5 2 जा 2 into 3 6, तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। सो ये कितना आ जाएगा 10 इंटू cos 37, cos 37 इज 4/5, 4/5 8 meter मतलब per 5 1 जा second, 5 2 जा, तो ये कितना आ गया मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया सभी को रिजॉल्विंग? यस सर। पक्का क्लियर हो Yes, गया? sir. यस सर। पक्का? आप वेक्टर ये बताओ, वेक्टर ये क्या हो सकता है, कोई बता सकता है क्या? वेक्टर ए बार इज इक्वल्स टू, इसका ए कंपोनेंट कितना है 4, वाई कंपोनेंट कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप। आया सभी को? ये देखो 4 एक्स एक्सिस में यानी आई कैप, ये हो गया मेरा j कैप, ठीक है ना? ये वेक्टर कितना यस है सर। इसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट कितना है 4i, वाई एक्सिस कंपोनेंट कितना है 4j, सॉरी 3j। तो कैसे लिख सकता हूँ, ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4i है और वर्टिकल कंपोनेंट 3j। क्लियर है सभी को? यस सर। आ गया? यस सर आ गया। यस सर। वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ बी बताओ अभी, बी का कंपोनेंट क्या आ सकता है, कोई बता सकता है क्या? वेलोसिटी ऑफ योर बी के भी दो 8i टुकड़े हो गए ना, 8i इसके दो कैप टुकड़े हो गए, minus एक टुकड़ा तो इतना है कितना 8i कैप माइनस 6j कैप। वेरी 6j गुड 8i कैप, उसके बाद जो Minus j 6j नीचे कैप। देखो, नीचे मतलब y, तो ये हो गया मेरे पास माइनस ऑफ योर 6j कैप। आया सभी को? यस सर। मैं यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हम लोग वेक्टर्स रिसेंटली करे तो वो एप्लीकेशन इजी हो जाता है, बल्कि रिलेटिव वेलोसिटी का भी मैं यहीं कर ले रहा हूँ, सेपरेटली नहीं करा है सर का। क्लियर है ना? ओके। तो ऐसा वाला कभी भी आपको आ रहा है तो कंपोनेंट्स क्या करना है, पहले एंगल दिखा मतलब क्या करना है, पहले उसको रिजॉल्व Components कर लेना है, resolve. चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद पूरा उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंपोनेंट, वी नीड टू राइट देयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कंपोनेंट्स बेटा, even for this one x axis and y axis component. So ultimately I got velocity of your a bar is equals to 4i and velocity of the b bar is equals to this one right now. Now what we need, question, what is asking the question, velocity of a with respect to b. Now everyone, velocity of a with respect to your b, that is equals to velocity of your a kitna, a is equals to 3 plus of your j cap, ये minus velocity of the b is equals to 8 i cap minus of 6 into your j cap। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कोई बता सकता है कितना है? देखो राइट नाउ यहाँ पर 4i minus 8j कितना होगा? 4 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, तो कम वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 4 into i cap। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? माइनस 4i cap आ रहा है, प्लस 9j कैप, 3j कैप माइनस ऑफ माइनस ये हो गया प्लस 3 में से 6 नहीं जाएगा तो ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस 3j प्लस 9
प्लस 3 प्लस 6 9 9. j cap. 9. 9 j कैप आ गया सभी को. Yes, sir. Yes, sir. This is the velocity of your A with respect to your B. थोड़ा दिक्कत लगेगा बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तो आराम से आ जाएगा. टेंशन लेने की पास ही नहीं है. 1 घंटे की क्लास होने के बाद फिर आप लोग 1 घंटा या 1.5 घंटा बैठ के इस पूरे लेक्चर को एक से बार करो और जैसा मैं प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ उसी मेथड को फॉलो करने की कोशिश करते रहो और थोड़े क्वेश्चंस करो और अच्छे क्वेश्चंस करो. मैं 1 से 4 बार उसी बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग अननेसेसरली इधर उधर चले जाके हाथ मार लेके अपना रिलेशन खराब कर लेते हो और फिजिक्स को टफ बना देते हो. आप यकीन मानो फिजिक्स इज मोर इजियर दैन योर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. अगर समझ में आया तो थोड़ा थोड़ा करो, अच्छा करो, ज्यादा कुछ भी नहीं. बड़े बड़े किताबें पढ़ो मत, बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ो मत. जितना क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ और अपनी एक मेडल जो मैंने बोला चुप चुप के मैं उसका नाम लेना नहीं चाह रहा, 1 से 2 बार मैंने बोला उसी को आप लोग ब्लाइंडली बिलीव करो, ज्यादा कुछ नहीं. तो ये तो वेक्टर मेथड पे था, आपने को क्लियर हो गया. और एक मेथड भी था अपने पास. व्हाट इज द सेकंड मेथड? आई टोल्ड यू बेटा, अल्टरनेट मेथड. अल्टरनेट मेथड क्या है? काका जी का मेथड है ये. क्या मेथड है? क्या करना है? जो भी रेफरेंस है उसको स्टॉप करना है, उसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी ए को ये देना. को देना. बस ज्यादा कुछ नहीं है. अपनी लैंग्वेज में याद रख लो. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू योर बी बाय सेकंड मेथड बोल के लिखता हूं मैं यहाँ पर. दिस इज बाय योर सेकंड मेथड. इसको कोई एक अच्छा सा नाम दे लेते हैं हम लोग. फोकस एकेडमी के कोई बच्चे बोल लो अल्टरनेट मेथड को कोई नाम देना है तो नाम दे दो, नामकरण कर दो. इसका हम लोग नामकरण कर दो, वही नाम लिख दूंगा मैं नेक्स्ट टाइम से. कभी भी रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम करेंगे तो यही मेथड का एक नाम डाल देंगे. ठीक है, चलो क्या करेंगे इसको हम लोग यहाँ पर देखो, अली सर का मेथड डालेंगे. इंस्टीट्यूट अली सर की है ना, अली सर का मेथड. ओके, अली सर का मेथड क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए बी. तो अली सर क्या बोल रहे हैं? बी B को को रेफरेंस स्टॉप लेना. करो. अरे बेटा बी को स्टॉप करो, इसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी ए को दे दो. इसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी ए को दे दो. क्लियर है? तो पहले देख लेते हैं ए और बी के रिलेशंस क्या क्या थे. बेसिकली ए के पास क्या था? 4i था, 3j था. और बी के पास कितना था? 8i और 6j था. ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, पहले ये देख लो. पहले बेसिकली स्टॉप, ये दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर 3i. देखो पहले ये का लिख रहा हूं मैं, बेसिकली एक ही डायग्राम में पूरा कहानी कर दे रहा हूं मैं. और ये हो गया यहाँ पर दिस वन. तो ये के पास यहाँ पर कितना था? दिस वन इज इक्वल्स टू 4i, i की वैल्यू 1 हो गई. और यहाँ पर हो गया 3j. तो ये कौन था बेटा? ये तो ये था. ए को तो स्टॉप करना नहीं है. अब हम लोग बी को स्टॉप करना है. बी के पास क्या क्या है? देखो बी के पास क्या था. देखो बी के पास क्या था? 8i था. अब 8i को क्या करना है? हम लोग को स्टॉप करके इसको इक्वल देना है. इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब ये प्लस था, इसको माइनस कर दो. माइनस कर दो मतलब क्या आ जाए? यहाँ पर आ जाएगा 8i. आया सभी को ये? सर ये देखो बेटा प्लस था ना, ये प्लस 8 प्लस आई है कि नहीं? यहाँ पर कितना है? प्लस आई है ना. प्लस को क्या करना हम लोग को? इसको माइनस. स्टॉप करके इक्वल एंड ऑपोजिट देना. ये को, ये वाला ये था ना, ये को ऑपोजिट दे रहे हो 8i. अब यहाँ -6j था तो माइनस था. माइनस प्लस. का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. प्लस हो गया मतलब ऊपर चले गया, तो ये हो गया प्लस यहाँ पर 6j आ गया. अब आंसर Yes, आप यहीं sir. से कर लोगे. अरे अगर आपको यहाँ पर इसका कैलकुलेशन दिक्कत लग रही है तो यहाँ पर दो लो. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो कितना बोलोगे? -4i है ना. ये प्लस है, ये माइनस है. 4 - 8 कितना? -4. 6 + 3 कितना? 9. 9. तो ये हो गया 9 × j कैप. क्लियर है? सर इधर हाँ बेटा. 6 Yes, तो -6j है ना सर, तो इधर ऊपर कैसे ले लिया अपन 6 को? क्या बोले? इधर वेक्टर बी में so -6j है ना, हाँ तो तो नीचे -6j. नेगेटिव तो में हम आना. लोग अली सर का मेथड क्या बोल रहा है? इसको स्टॉप करना है, इसकी ऑपोजिट देना है. -6 को +6 करना है. ओके सर. समझ में आया? जी सर सर. प्लस को माइनस करना है, माइनस को प्लस करना है. ओके सर. आया समझ में? जी सर. पक्का? यस सर. कर लोगे ना ऐसे वाले क्वेश्चंस? यस यस सर. सर. ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो. सभी लोग एक पेन पेपर लेकर ट्राई करो. 2 मेथड से भी करो पहले, क्योंकि आप लोग को जो भी परफेक्ट बाद में मिलेगा उसके हिसाब से आप लोग करते चले जाओ. मान के चलो यहाँ पर ये है और ये हो गया ऊपर जा रहा है विद ए वेलोसिटी मान के चलो 10 मीटर/सेकंड. और यहाँ पर बी है और ये यहाँ पर जा रहा है, ये हो गया 15 मीटर/सेकंड से जा रहा. और ये एंगल बना रहा है यहाँ पर 53 डिग्रीज. तो मुझे चाहिए क्या? वेलोसिटी ऑफ योर बी विथ रेस्पेक्ट टू योर ये. आराम से दिमाग लगा के, अपना दिमाग लगा के करो. एक पेपर ले लो
आराम से करो, प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड हम लोग बाद में बढ़ा लेंगे। पहले क्या करना है, ए को तो रिजॉल्व करना नहीं है, ये तो सीधा सीधा वर्टिकली ऊपर जा रहा है, तो वो बोल रहा है कि मुझे मत छेड़ो। और बी कहाँ जा रहा है, बी तो मेकिंग एंगल जा रहा है, तो अब ये बोल रहा है कि अब जितना मेरे को छेड़ सकते हो उतना छेड़ो। अब छेड़ना मतलब इसका क्या करना है, ये तो थोड़ा एंगल बना रहा है, तो इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर देना, इसका एक एक्स कंपोनेंट लिख दो और इसका एक वाई कंपोनेंट लिख दो, ठीक है ना। तो अब इसको देखो, मैं देख रहा हूँ कैसे लिख रहा हूँ, ये का तो ऐसे ही था, ये हो गया ऊपर जा रहा था, तो इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया बी, और बी कहां पर जा रहा था, इस तरह से जा रहा था, तो बी के पास वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकेंड, और उसके साथ उसके एंगल भी थी, तो एंगल कितनी थी यहाँ पर, एंगल इज योर 53 डिग्रीज। इसको अगर रिजॉल्व करें तो ये बन जाएगा 15 इंटू कॉस 53, 50 और ये बन जाएगा 15 इंटू into साइन sin ऑफ 53 53। अब इसको हम लोग इसके वैल्यूज लिख देंगे, इसके वैल्यूज देखो कितना हो जाएगा, 15 इंटू कॉस 53 कितना हो जाएगा, 3/5, 5 1 जा 5 3 जा 3 3 जा 9, तो ये हो गया 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 15 इंटू साइन 53, साइन 53 इज 4/5, 5 1 जा 5 3 जा 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 पक्का yes sir हो गया। सभी को क्लियर है इतना, Yes, sir. यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, Yes, sir. Yes, sir. isn't it? यहाँ पर हो गया क्लियर। अब ये देखो पूरा मिला के एक बार जल्दी से लिख दो, मैं इसका रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ए तो था ऊपर, ये था ऊपर कितना 10, और यहाँ पर अब देखो बी को कितना था, ये तो ए था और ये तो बी था, बी के पास इस डायरेक्शन में थी 9 और डाउन डायरेक्शन में है कितना 12, 12. ठीक है ना। अब वेक्टर मेथड से आप लोग ट्राई कर लो, मैं तो अली सर का मेथड लगा रहा हूँ। बताओ जल्दी से क्या करना है, किसको पकड़ना है, किसको खोलना है, किसको स्टॉप करना है, जल्दी से बताओ। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब को स्टॉप करना है A को स्टॉप करके नीचे ए करना. को -10. स्टॉप करो, ए को स्टॉप करो, और उसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी बी को दो, उसकी इक्वल और ऑपोजिट वेलोसिटी बी को दो, ठीक है। चलो जल्दी से कर दो। अभी स्टॉप किसको करना, ए को स्टॉप करना। ए कहां जा रहा था देखो जल्दी जल्दी, अरे ये तो ऊपर जा रहा था, उसको पकड़ो जल्दी से, पकड़ के उसको क्या करना है, बी को मिलाओ और नीचे डाल दो, बस हो गई बात। अब देखो बी के पास क्या क्या था ऑलरेडी, बी के पास तो बोल रहा था मेरे पास तो सीधा सीधा इस डायरेक्शन में 9 था, और नीचे तो मेरे पास कितना था 12। Sir, अब हम लोग 9 को करना क्या है, 22 ए B. को स्टॉप करना, ए को स्टॉप करके बी को देना। अरे बी तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, देखो बी के डायरेक्शन में नीचे, तो यहाँ पर बी के डायरेक्शन में क्या करोगे 9 ऐड कर दोगे, ठीक है ना। अब अल्टीमेटली क्या आ गया देखो, ये इस डायरेक्शन का तो वेलोसिटी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये तो 9 एज इट इज रहेगा, लेकिन डाउन कंपोनेंट इज बिकमिंग हाउ मच राइट नाउ, 9 + 12 इज हाउ मच, दोनों को ऐड करना है ना, 9 + 12 इज हाउ मच 21 21, बोलना ना। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ योर बी विथ रिस्पेक्ट टू योर ए, क्लियर है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ये कितना आया, कोई बता सकता है क्या, वेक्टर में बताओ जल्दी से। ये तो -9i कैप है, और ये -21j कैप, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड लिख लोगे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, मैं तो छोड़ रहा हूँ आप लोग के लिए, आप लोग ट्राई कर लो। दिस वन इज √of योर 9 होल स्क्वायर प्लस हो गया 21 होल स्क्वायर, इसका जो भी आंसर आ रहा उसको आप लिख लो, ठीक है, कर लोगे Yes, sir. पक्का। Sir, आप क्वेश्चन समझ में आ में गया ऐसो, सर क्या बेटा, आप क्वेश्चन में इधर एक ए बार को ऐसो 10 मीटर पर सेकंड दिया ना सर, कहाँ पर बेटा, 10 मीटर पर सेकंड है सर ये, हाँ तो 10 मैं मीटर 10 ही लिया था। अच्छा यार 9 10 नहीं लिया, 9 लिया है सर, 9 कहीं को लिया, फिर 22 आना चाहिए सर. 9 कहीं को लिया, फिर मैं बोलते नहीं आप लोग कहाँ से मैं गया वही यार। एकदम कंफ्यूज हो गया सर, मैं इसलिए पूछा आपसे. अरे नहीं, जब जब मेरे को भी हो जाते रहता वो, क्योंकि इधर उधर पेज में जाते रहता ना, तो वैल्यूज नहीं दिखते, आप जरा बोला करो बेसिकली। तो ठीक है चलो, ये तो यहाँ पर कितना था 12 था ना, यहाँ पर कितना होना चाहिए 10 होना 10, चाहिए, 22 सो ये कितना हो जाएगा 22, ठीक है ना। तो दिस विल बिकम फॉर मी हाउ मच, -9i कैप -22j कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ये कितना हो जाएगा
अंडर रूट ऑफ योर 9 का होल स्क्वायर प्लस 22 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, उसका कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? Yes, sir. सर Yes, sir. हाँ, बोलो बेटा, कुछ डाउट था क्या? कुछ डाउट था क्या? नो सर। क्लियर है ना सभी को ये मेथड? Yes. चलो, ये हो गया अपना रिलेटिव वेलोसिटी इन योर 2 डायमेंशन पार्ट ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट जाते हैं रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स के पास। रेन एंड अम्ब्रेला, रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स हम लोग ये पूरा कौन से मेथड से करेंगे? अली सर वाला सर मेथड। के मेथड से करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है अली सर का मेथड? अगर रेफरेंस है, रेफरेंस को स्टॉप करो, इसके इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी दूसरे को दे दो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेन एंड अम्ब्रेला के बारे में बात कर। अम्ब्रेला कौन पकड़ेगा बेटा? अगर आप पानी में जा रहे हो, अगर बारिश हो रही हो, तो अम्ब्रेला को कौन पकड़ेगा? आप पकड़ोगे कि कोई बाजू वाला पकड़ेगा? हाँ, principal. पकड़ेंगे ना, तो जो जा रहा आदमी वही पकड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल आप हद से ज्यादा अमीर हो, है कि नहीं। अब अपने लिए तो हम लोग ही पकड़ के जाएंगे, चाहे पानी आए कुछ भी आए, तो तो हम शादीशुदा रहे तो पकड़ेंगे। अपन अम्ब्रेला को कौन पकड़ेगा? अभी हम लोग ही पकड़ेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मैन की जगह आप लोग अपना अपना नाम डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ योर मैन। अब बारिश जो गिर रहा है, तो क्या कभी आपका परमिशन लेके गिरेगा? नहीं ना। या कभी आपको ऐसा पूछ के गिरेगा कि अरे आज मैं 90 डिग्रीज में गिरूंगा, या कल मैं 95 डिग्रीज में गिरूंगा, आज मैं 45 डिग्रीज में गिरूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, नहीं सर. है कि नहीं। तो यहां पर रेफरेंस कौन होगा? रेन होगा कि मैन होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, Man. isn't it? Velocity of rain with respect to man or velocity of man with respect to rain, क्या लिखना है हम लोग, ये बताओ। हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पे बात कर रहे हैं। सो हु इज ऑब्जर्वर हियर? यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन होगा? मैन होगा कि रेन होगा? Man, sir. मैन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? सो वी विल बी स्टॉपिंग द मैन, वी विल बी stopping the man, we will be stopping the man and give his equal and opposite velocity, equal and opposite velocity to rain। क्लियर है सभी को? Yes, यही sir. लॉजिक लगाएंगे हम लोग, जो प्रीवियस में बताए थे ना, वही लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पर मैन इज योर रेफरेंस, आई कैन से दैट मैन इज योर रेफरेंस और ऑब्जर्वर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन मींस स्टॉप द मैन, गिव हिज इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू द रेन। बस यही लॉजिक पे पूरा का पूरा रेन एंड अम्ब्रेला के प्रॉब्लम्स जितने भी डिफिकल्टी होगा ना, उसी से करेंगे। नहीं सर मुझे वेक्टर मेथड भी में करना है, तो अगर आपका वेक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो वो मेथड भी आप यूज कर सकते हो, बट 99.99% मैं भी उसका एक शॉर्टकट दूंगा फाइनली, अगर हमको वेलोसिटी ऑफ रेन कैसा निकालने का। लेकिन जितना भी लॉजिक मैं भी आपको ये मेथड से बता रहा हूँ, यही मेथड लगाने की कोशिश करो। स्टॉप द रेफरेंस, गिव इज इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू योर रेन पार्ट ऑफ रिलेशन। मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पर। ये हो गया रेन, तो रेन तो ऐसा गिरेगा। सो दिस आर द ड्रॉप्स ऑफ ए रेन। सो मान के चलो रेन ऐसा गिर रहा है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। और मान के चलो यहाँ पर एक ग्राउंड है। सो इस ग्राउंड पे आप ठहरे हो। सो यू आर हियर राइट नाउ। तो आपकी तो वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। अब वेलोसिटी ऑफ मैन कहां पर है? रेस्ट पे। तो ये फेलो अगर रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0।
तो अब इसका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मतलब क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज नथिंग बट वी माइनस दिस वन इज 0। VM. सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन के बराबर ही होगा। अगर बारिश में अगर आप एक ही जगह ठहरे हो तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी भीग जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि आपके ऊपर पानी Sir. जो इक्वली गिर रहा है जैसा भी कंडीशन में। आपने कभी देखा होगा, बेसिकली मैंने ऑलरेडी सीनियर्स को भी बताया होगा, अगर आप बाइक लेके जा रहे हो, अगर बारिश सडनली स्टार्ट हो गई, आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया, यू माइट हैव बीन ऑब्जर्व सम टाइम दैट व्हेन यू हैव बीन ट्रैवलिंग ऑन योर बाइक और ऑन योर स्कूटी और मे बी say for example of a cycle, whatever it may be, you might have been seen that only sometime your front part of your body is more wet compared to the back side of your body. Have you seen, have you experienced such type Yes, of sir. Yes, sir. isn't it? Sometimes what happens, only your back side of your body will completely get wet when front side of the body will be somewhat dry. उतना ज्यादा पानी नहीं पड़ेगा, ऑब्जर्व किया होगा ना। Yes, sir. अगर तेज बारिश में अगर आप ठहरे हो तो you will be completely getting wetted, but in the rain if you are going with a certain velocity, तो आपको कभी कैसा दिखेगा कि रेन आपके सामने से हिट कर रहा है, तो कभी आपको दिखेगा रेन आपके पीछे से हिट कर रहा है। So that will be depending upon आपका रेफरेंस। अगर आप ठहरे हो तो एक एंगल पे दिखाई देगा, if you are moving it appears to be something else, and if it is moving in opposite direction it appears to be something else. But right now in this situation I'm taking the first situation, first case, rain is falling in vertical, because rain तो आपको पूछ के नहीं गिरेगा कौन से एंगल में गिर रहा है, तो मैंने इसको कांस्टेंट मान के चलो velocity of rain is falling in the downward direction, but man is on the ground और ये फेलो रेस्ट पे, तो velocity of rain with respect to man कितना हो गया, vr के बराबर हो गया। This is your case number 1. This is your case number 1. Now see case number 2. Case number 2, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सामने धक्का देंगे, यानी मैन को बोलेंगे बेटा आप जरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाके आओ, देखते हैं कि बारिश कौन से डायरेक्शन में आपको हिट कर रही। तो अब बोलेगा कि बच्चा क्या करेगा, ठीक है पानी में तो हम लोग को भीगने की आदत बहुत है, अब मम्मा परमिशन दे दिया तो आराम से भागेंगे। तो ये हो गई मेरी इनिशियल वेलोसिटी, तो मेरी 0 थी। अगर मम्मा बोले बेटा जरा बाहर जाके आओ, बारिश में घूम फिर के आओ, भीग के आओ, तो अब हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ बॉय जो भी है, तो ये मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन। अब बारिश तो ऊपर से ही गिर रहा है, तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन तो एज यूजुअली ऊपर से ऐसे ही गिरेगा, ठीक है ना। तो अब ये मूव कर रहा है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। नाउ सी हाउ डू राइट दिस वन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखना है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ योर रेन, isn't it, velocity of your rain particulation minus this is the velocity of your man, this is your velocity of your man particulation। अब इसको देखो हम लोग, velocity of your rain we are talking about right now, तो हम लोग को डायरेक्शन के बारे में बात करना है पहले, तो हम लोग इसके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। velocity of rain is falling and man is also moving, so we are talking about velocity of rain with respect to your man, so we'll stop the man, so velocity of rain is no doubt falling in the downward direction, so this is your velocity of your rain। Man was moving in this direction, stop man and give his equal and opposite velocity, and give his equal and opposite velocity to what, to rain। तो ये तो रेन है ना यहाँ पर, तो अब रेन में देखो यहाँ पर मैन वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो इसको ऑपोजिट कर दो तो यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ योर मैन। ये माइनस साइन आपको डायरेक्शन देने के लिए बेटा, अगर आपने डायरेक्शन ले लिया तो ये माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, कि माइनस साइन की वजह से मैंने वेक्टर ऑलरेडी पीछे ले लिया, ये वेक्टर पॉजिटिव था, इट वाज मूविंग इन अ पॉजिटिव, बट आई हैव स्टॉप्ड द मैन and given his equal and opposite velocity to the rain in the backward direction, so vector I have represented here right now, so one vector is in down, one vector is in negative x axis, and you know how to calculate the resultant, obviously this is your resultant, this is the velocity of rain with respect to your man, ठीक है, and this is making an angle with respect to this one, तो ये हो गया theta, ठीक है। So velocity of rain with respect to man will become how much for me? So velocity of your rain with respect to man is equals to velocity of your rain minus velocity of your man. Clear hai? Yes, sir. Isn't it? So we have stopped the man and given its equal and opposite velocity. So initially क्या, when the man was at rest, no see when man was at rest, उसको कैसे दिख रहा था, पानी तो ऊपर से गिरता हुआ दिखाई दे रहा था, अब ये man move कर रहा तो उसको कैसे दिखाई दे रहा कि velocity of rain is hitting this fellow like this, यानी he should hold the umbrella in this direction। if I take the vertical like this, इसको ऐसा extend कर दूं, इसको ऐसा extend कर दूं, तो man यही था ना, तो man को क्या करना पड़ेगा, he should hold the umbrella in this direction,
ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो गया. So this fellow should hold the umbrella in this direction, making an angle theta with respect to the vertical. आ गया सभी को? तो this is the Yes, velocity of man. ये हो Sir. गया velocity of your ray. तो tan theta कैसे लिखो? कोई बता सकता है क्या? Tan theta is equals to how much for me? From this figure. VR by VM. Tan theta from this figure is how much beta? VR by VM or VM by VR? VR by VM. VR by VM. यानी थीटा हो गया वर्टिकल से tan इनवर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन. आज सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ा रहा हूं. यू मेक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन वेरी क्लियर. Try to what you call that one, watch my video n number of a time so that you will get a clarity. All the students who have been very weak or who might have been listening it for the first time, so उन लोगों को थोड़ा तकलीफ होगी, but no doubt तकलीफ के बाद ही आप लोगों को आराम मिलेगा. तो try to read it once and twice. फिर भी समझ में नहीं आ रहा, आई एम ऑलवेज देयर विद यू. प्लीज ट्राई टू टॉक टू मी डायरेक्टली, आई विल हेल्प यू आउट. आरएस मैं आपको और एक बार भी समझाने की कोशिश कर सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अब ये जो थीटा जो है ना, थीटा कितना आ रहा? tan इनवर्स ऑफ वीआर बाय योर ए. थीटा इज विद व्हाट? वर्टिकल. दैट मींस द मैन शुड होल्ड एन अम्ब्रेला विद a vertical at an angle of how much? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वीआर बाय वीएफ. आप बोलोगे नहीं सर मुझे वर्टिकल से नहीं चाहिए, मुझे बीटा हॉरिजॉन्टल से बताओ. तो बीटा कितना बन जाएगा? कोई बता सकता है क्या? बीटा कितना हो जाएगा विद द वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल से कितना होना चाहिए? 90 माइनस 90 minus theta. तो ये हो गया बीटा. ठीक है, अगर आपको थीटा वैल्यू अगर आपको वर्टिकल से नहीं लेनी है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल से पूछ रहा है तो बीटा वैल्यू भी निकाल सकते हो. अगर आपको थीटा 60 डिग्री से आया समझो, तो बीटा कितना हो गया? 90 माइनस 60 है ना, 30 बोल दोगे कि नहीं? Sir. Sir. तो ठीक है, क्लियर है. तो एंगल ऑफ अम्ब्रेला निकालना आ गया ना, तो व्हाट एंगल ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला. क्लियर है सभी को? नो सर आंसर. एक बार एक्सप्लेन Yes करिए sir. ना. Yes sir. हाँ ठीक है, मैं और एक बार बता देता हूँ. इसको ही आप लोग केस नंबर 3 मान लो. केस वाला 2 ही है, लेकिन आप लोग और एक बार पूछें इसलिए मैं बता रहा हूँ. तो मैं करके आ रहा हूँ, देखो सेम कंडीशन. रेन इज फॉलिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द रेन. आराम से सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेन इज फॉलिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन. अब आप ये रोड है, आप यहाँ पर ठहरे हो, ठीक है. ये है आप, this is yourself or man. This man started moving in this direction. So this is the velocity of your man. Now I need to calculate what? Velocity of rain with respect to man is equals to how much? And at what angle he should hold the umbrella? And at what angle? At what angle should ये मैन है, ये किसको दे देंगे? ये अली सर को ही बना दें. अली सर मांग के अली सर के पास तो होंडा सिटी है, सारे अली सर के पास. टू व्हीलर पे तो जाएंगे ही आपको ले नहीं. लेंगे सर. मेरे को ले लेंगे, यानी मेरा ही नाम है. चलो मेरे को ले लेते हैं. अरे यार मेरे को ना लो, आप आपके आसिफ सर को ले लो, यानी डीटीपी सर है ना, उनको ले लो, आपके इंचार्ज को ले लो. मेरा नाम नहीं है. ओके, आपके इंचार्ज है. ठीक है, आपके इंचार्ज है आसिफ. ठीक है, बाद में मुझे गाली मत देना इनडायरेक्टली. सोलो यहां पर हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन. वेलोसिटी ऑफ मैन इज इन विच डायरेक्शन बेटा? नेगेटिव एक्स एक्सिस. Velocity of rain is in which direction beta? Downward direction. I need what? Velocity of rain with respect to man, and at what angle he should hold umbrella. He should hold umbrella. He should hold umbrella. ठीक है ना, ये मेरा क्वेश्चन. बहुत क्लियर लॉजिक है. फंडा को सा लगाओगे, अली सर का मेथड लगा दो. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मतलब क्या? पहले वेक्टर ड्रॉ कर लो. रेन तो नीचे गिर रहा था, ठीक है, नीचे ही गिरने दो. दिस वन वाज ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन. Man was moving in this direction. है ना, आसिफ सर तो जा रहे थे नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस में. अब उनको पकड़ो, रोको और उनको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वेलोसिटी दे दो. तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ योर मैन. क्लियर है? इज इट क्लियर गर्ल्स? नाम याद नहीं है आप लोग का मुझे, प्लीज लेट मी नो. वी आर स्टॉपिंग द मैन. We are giving his equal and opposite velocity to the rain. रेन को देना है, रेन को यहाँ पर जा रहा है, रेन को देना हम लोग, किसी और को नहीं देना. ऐसा नहीं कि सर हम लोग मैन को रोक देंगे, वेलोसिटी किसी को भी पकड़ा देंगे. नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. वेलोसिटी ऑफ रेन हम लोग को ले रहे हैं. इसका ये अपना मेरा स्टैंडर्ड रेफरेंस है. बेसिकली मैन इज राइट नाउ मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द रेन, बट रेन इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द मैन. तो वेलोसिटी ऑफ योर मैन को हम लोग स्टॉप करेंगे, उसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी हम लोग रेन को देंगे. क्लियर है? Yes sir. क्लियर है?
So velocity sir. of rain with respect to your man. So that is equals to how much for me? Velocity of your rain हो गया पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ये हो गया मेरे पास कितना बेटा? वेलोसिटी ऑफ रेन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पहले इसका डायग्राम बता दो मेरे पास, वेक्टर बाद में कर लेंगे। तो ये हो गया इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी रेन से आप एंगल बना रहे हो, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, isn't it? So velocity of your rain with respect to your man. तो अब इसको करना क्या है हम लोग? At what angle he should be holding the umbrella? तो ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इस तरह से। अगर मैं इसको इस तरह से खींचूं तो man was somewhere here. If this is theta, this is also your theta. That means the man should hold the umbrella. The उसे पेन ले लो यार, पूरे तो पेन यूज कर लिया मैंने, ये वाला यूज कर लेता हूँ। चलो, तो ये हो गया अम्ब्रेला यहाँ पर, इस डायरेक्शन में हम लोग को अम्ब्रेला पकड़ना, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। क्लियर है? Yes, sir. तो ये हो गया यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ योर मैन, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। तो एंगल कितना बनेगा कोई बता सकता है क्या? tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना है? VR by VR. VR by VM, यानी थीटा हो गया कितना? थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. आ गया? मैं बाद में इसके न्यूमेरिकल्स भी डाल के बताना शुरू करूंगा। ऑलरेडी सीनियर्स बच्चों को मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करवा दिए, यानी ऑलरेडी मैंने रेन एंड अम्ब्रेला के आप लोग को वो डाले थे, क्या बोलते हैं सो, शेयर भी किया था लिंक, आप लोग वहां पर भी जाके देख सकते हो, आराम से उसका आंसर्स निकल जाएंगे आप लोग को। ठीक है? Okay, sir. इसका अगर रिजल्टेंट निकालना तो कौन बताएगा बेटा? रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? अंडर रूट ऑफ योर VR स्क्वायर VR square plus VM। VM square. क्लियर है सभी को? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक प्रॉब्लम कर लें जल्दी से, उसके बाद बाकी का कल से कर लेंगे। छोटा सा प्रॉब्लम है, आप लोग बता दो मेरे। आज आप लोग प्लीज ट्राई टू रीड दिस नोट्स वेरी क्लियरली एंड ट्राई टू गो थ्रू द वीडियो लेक्चर वंस अगेन, विल गेट ए क्लैरिटी इन दिस। मान के चलो दिस इज योर रेन, टक बोल के आंसर बोल देना आप लोग। दिस इज योर रेन falling in downward direction. मान के चलो velocity of rain is equals to 4 meter per second. So what is the question is, this is मान के चलो horizontal road है, और यहाँ पर कहीं पर man है, ठीक, और ये हो गया रेन इस तरह से गिर रहा है बेसिकली, ठीक है ना। सो मान के चलो velocity of your man is right now in this direction, ये हो गया horizontal direction। velocity of man is equals to मान के चलो 3 meter per second. So the question is, यहाँ already लिख दिया ना, velocity of rain with respect to man is how much, and with what angle he should hold the umbrella? That means what is the angle with vertical? This is the first question. The second question, what is the angle with horizontal? What is angle, sorry मैं नीचे लिख देता हूँ, ये one है। Second question, at what angle he should hold umbrella with horizontal, ठीक है ना? जल्दी बोल देना। मैं इसी क्वेश्चन में आप लोग को आंसर दे दे रहा हूं बेटा, मैं रेड पेन से ड्रॉ किया हुआ, दूसरे पेन से जो ड्रॉ कर रहा हूं इसका आंसर है। मान के चलो मैन जा रहा है, तो नो डाउट रेन तो नीचे ही है, तो यहीं पर ड्रॉ कर रहा हूं इसको। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ योर मैन। किसको स्टॉप करना? सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रेन, सॉरी, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन। किसको स्टॉप करना है बेटा? वी नीड टू स्टॉप द मैन एंड गिव हिज इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू द रेन। तो स्टॉप कर दिया मैन, तो यहाँ पर हो गया वेलोसिटी ऑफ योर मैन। सो इसका यहाँ पर आ जाएगा रिजल्टेंट, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ बीटा विद द वर्टिकल, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, तो रूट 25, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। दैट मींस ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला इन विच डायरेक्शन। ये फेलो जो है ना यहाँ पर है वर्टिकल पे, इसका तो हाथ यहाँ पर है, तो इसको अब अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा? यहाँ पर इसका हाथ है, तो इसको रेन कैसे दिख रहा है? इसको दिखाई दे रहा है कि रेन जो है ना, बारिश जो है ना ऐसा पड़ रही है, इसको क्या दिखाई दे रहा है कि बारिश इस डायरेक्शन में पड़ रही है,
ये व्हाइट जो आया ना इस डायरेक्शन, क्यों? क्योंकि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अब ये पर्सन को क्या करना चाहिए? ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला इन दिस डायरेक्शन, इजंट इट? अगर ये बीटा है तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? ठीक है ना? दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? बीटा ना? Yes, sir. ये हो गया बीटा। तो tan बीटा बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा? tan बीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ यूवर कितना होगा? VR by VM. देखो VR by VM हो रहा है कि VM by VR हो रहा है? ये थीटा है ना बेटा? थीटा कितना हो रहा? थीटा कितना हो रहा है? यहाँ प्रीवियस भी हम लोग एंगल देखो क्या कर रहे थे, गलत लिखे थे शब्द को यार। tan थीटा कहाँ पर आ रहा है? देखो tan थीटा इज इक्वल्स दिस वन ना, Yes, sir. ये थीटा है ना, तो VM by VR आएगा ना, सॉरी दिस इज नॉट सर VR by VM। VM by VR आप लोग ऑपोजिट बाय एडजेसेंट है। हाँ, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन बाय वेलोसिटी ऑफ दिस वन ना, ये चलेगा, छोटा कर दो, ये छोटा हो गया, ये हो गया, चले गया, यहाँ पर भी चले गया, तो इसको यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ योर मैन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ योर रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। ये देखो ना ट्रायंगल पार्ट, सॉरी मैं भी आप लोग की बातों में आ गया था, यहाँ पर भी उतना ही होगा सब बोले, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर, छोटा सा कर दो, अच्छा या तो यहाँ पर भी वेलोसिटी ऑफ मैन वेलोसिटी ऑफ यूर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, देखो जल्दी से कितना, ये कितना हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो tan बीटा मतलब इसका अगर मैं वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो कैसा हो रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे कितना है मेरे पास, ये डायरेक्शन में, और वेलोसिटी ऑफ मैन कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अनदर कंपोनेंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन राइट नाउ। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ योर मैन, तो ये था रिजल्टेंट, और ये था बीटा। तो ये भी आपके पास VM ही होगा ना बेटा, ये VR है और ये VM है। तो tan बीटा कितना हो जाएगा? कोई बताओ राइट नाउ। tan बीटा इज इक्वल्स टू VM by VR डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है ना? वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? वेलोसिटी ऑफ मैन इज हाउ मच फॉर मी? कितना दे रखा है? 3। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? 4, 3/4, यानी बीटा कितना आ जाएगा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ tan बीटा? इट इज 3/4, 37 degrees. 37 डिग्री। सो दिस वन इज यूर 37 डिग्रीज। लेकिन अपने को आंसर कहां से पूछा उसने? आंसर क्वेश्चन कहां से पूछा? देखो Horizontal. व्हाट एंगल ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला विद हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल एंगल कितना होनी चाहिए? विद द हॉरिजॉन्टल मतलब ये 90 वाला - 37 so answer will be equal to how much will mean 90 minus beta, that is equals to 90 minus 37, so that will be equal to how much for me? 53। ठीक है, आ गया सभी को? केस 3 में tan थीटा वैसे है सर, क्या बोले? मैं VR आना ना सर, tan थीटा क्या बोल रहे? इधर सर, ये डायग्राम के नीचे VM by नाम के नीचे tan थीटा, ये वाला, उसके ऊपर ये वाला द ग्रीन में लिखा है सर, देखिए tan थीटा बोल के। हाँ, tan थीटा इक्वल टू VR by जी, VM by VR, सॉरी मैं रब कर ही देता हूँ बेसिकली। ये हो गया VM by VR, ये हो गया VM डिवाइडेड बाय VR, ठीक है ना? ओके सर, क्लियर है सभी को ये पार्ट? रेन एंड अम्ब्रेला का भी कॉन्सेप्ट होगा इसी के अंदर, और इसके एप्लीकेशंस और अच्छे वाले प्रॉब्लम्स कल के क्लास में कर लेंगे। उससे पहले भी मैंने आप लोग को एक रिलेटिव वेलोसिटी का लिंक भेजा है, अगर आपके पास टाइम है तो वो भी आप लोग रात में जरा देख लीजिए टाइम निकाल के, ठीक है? ओके सर, Okay, sir. टेक केयर बेटा, बाय। Thank you, sir. सर। Bye, sir. हाफिज सर। बाय बेटा।